When you started out this Zipit, आपने क्या क्या challenges starting में face किए? Zipit एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करके लोकली सेल कर सकते हैं एंड डिलीवर कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कमीशंस। द फर्स्ट चैलेंज वाज टू डिजिटलाइज द रिटेल स्टोर्स, उनके प्रोडक्ट्स अपलोड करना। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सेलर्स को कन्विंस करना। Zipit के लिए जो मेरा विजन है फ्रॉम डे वन टिल टुडे इज़ वेरी सिंपल, दैट आई वांट टू hand over Zipit to government and then run it for them. And the best part is that I do the fastest deliveries. Not even Swiggy, Zomato, Blinkit, Instamart, Zepto. None of them can do a faster delivery than me. I have a proven record of delivering it in under 2 minutes or something. Basically, this is something that I would like to share with all the appreneurs out there. आप अपनी ऐप को एक टेक्नोलॉजी या एक डिवाइस से अगर रिलेट कर सकते हैं तो you can patent it. Nobody knows this in the market. Almost none of the entrepreneurs, whoever I tell this to, they're all like, this is possible? Seriously? And then I show them my patents. एक ऐसी चीज़ बताओ, अगर जो कोई स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके लिए क्या एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है? हेलो हर्ष, कैसे हो? All good, how are you? All good. Thank you so much for joining the podcast first of all. And how's life going? Life's going amazing. A bit messy, amazing kind of, but that's how it works, right? Always. Okay. क्या एज है आपकी अभी? I'm 26 right now. Okay. And as a childhood, आपका as a kid, आप कैसे थे? बहुत मस्तीखोर, as every child is, and dreamy in the sense I used to imagine things a lot. I used to play with toys a lot, so I've always been that playful thing. I do experiments. So ये सब I have been the most notorious in the class kind of a person always. Yeah. Okay. And you're from Ahmedabad only? Yes, I'm from Ahmedabad. From school to college and everything? Yes, I'm born and brought up in Ahmedabad. Okay. Yes. Okay. Do you have any business background? As in a family business? Yeah. Yes. My grandfather runs a food stuff trading business that is in Dubai, and my father runs a manufacturing and clothing textiles. So you didn't join that particular business? No, like personally, like of course that comes as a first question because I'm a Sindhi, so you know that family business pressure is always there. Yeah. But as you see, my father had to do his own thing. Similarly, I had to do my own thing. But it's not like that I have not even thought about that. I've always participated in the family business, and I have made sure that it goes stable and it has a growth structure as well, Okay. according to the new technologies. So I have a part in that as well. But that was way back, I guess 5 years back from now, जब मैंने participate किया था. So जो आपके फादर का जो बिजनेस है उसमें आपने किस तरीके से अभी इन्वॉल्वमेंट दिया अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से? yes, a lot. So basically, my father was into textiles for men's. The first thing when I joined his business was that I changed it from men's to female, right? To women. The reason was simple. I was looking at I love the current trends. I love reading current trends and everything. तो तब मैंने realize किया कि of course a woman purchases more than a man does throughout the year. Of course, it has a bigger turnover. So the market that we belong to, the textile market that we belong to, everyone was dealing in men's textiles. We were the first ones to introduce the same, और वहाँ से फिर turnover tripled in a year or something. So it was a very good thing. अब वो एक automation, it is like a trading business, right? You just have to buy it from here and then sell it from here. So I have always believed that I'm not made for all of that. अच्छा. Okay. Since I was a child, I have been doing business, right? मतलब okay. I have been doing X number of e-commerce things. I have been doing X number of startups and all. So I realized that I want to rather focus upon building a community, a bigger community, and not doing this trading business that we see. I always like to invent something new. Okay. So that is why I have not joined my family business. Okay. And आपने कॉलेज कहाँ से की हुई है? So I have graduated from Ganpat University. That is a university in Ahmedabad itself. You have pursued masters as well? Yes, I have done MBA in finance. That is from London, Liverpool. So you did MBA from there? Yes, exactly. I did MBA because finance, I felt that I was always weak in finance. Okay. So that was the segment that I wanted to understand and study. So that is why I did an MBA.
Otherwise, it was not needed because I already had an established business after my BTech itself. Acha. So what was the year when you did the MBA? It was in 2019 that I started. Sorry, 2020 that I started. Okay, so you pursued that till 2022. Yes, 22. Correct. Okay, and then you started the Zipit. No. Zipit started 2018. Acha, way long. Way back, yes. So in 2018, जैसे मैंने family business join किया, I realized that there was a big problem in the market. Okay. जहाँ पे my father was not ready to sell online. There were two reasons to it. One, that there was a commission model on Amazon, Flipkart, or any other brands that you see. There is a commission model attached to it. So that was the first problem. And second was that if we want to sell on those platforms, हमें हमारी products की price increase करके उसको sell करना पड़ता. Because Right? commissions. Yes. In that case, the customer wouldn't purchase it because we already saw that the manufacturers were already on those platforms, selling it at a lower price. Okay. So that is why I thought about this, that how do I remove this commission model with my expertise that has always been into the freemium model. Stepping back, like आपने बताया कि आपके multiple startup थे. तो was this the first one? No, this was my fourth startup, Okay. What was like a fir- part of startup. Okay. My first thing was a business that was I was into trading of watches and all vapes and everything. Okay, that happened in 2014. okay. So tell me that journey, like 2014 to 2024. Okay. Yeah. So 2014 I started. So I wanted some shoes, a Nike shoe that I wanted always, and my father denied. So I used to play football back then, and I was a big fan of Messi. So this Adidas launched a new Nike this Messi edition, and I was always wanting to get that thing, and I was like, "Ab kya kare?" So I asked my father for it. Of course, any 14-year-old would ask their father for it, right? So So I went to my father. I told him that I want this shoe specific. What can be done? तो ही इज़ लाइक कि अब खुद कमा के खुद करो, मैं तो 9,000 के जूते नहीं दिला सकता. बराबर. तो आई रियलाइज़ कि अब यार यही लाइफ है, मतलब आई वाज़ लाइक कि अब मैं क्या करूँ, पैसे कैसे कमाऊँ? तो आई न्यू दिस वन ऑफ माय नेटिव अंकल, उनकी एक शॉप है सिटी में, एंड आई वेंट देयर. सो ही यूज्ड टू सेल ऑल द वॉचेस एंड एवरीथिंग and accessories and all of that, which was in trend that time. So I started by doing the trading for that, and I earned a good some amount out of that. So when I was 14, I used to earn something like 5,000 rupees a day, which was a very good amount at that time. Okay. And it felt like I was the king, like 5,000. हाँ, 14 साल के बच्चे के हाथ में 5,000 रुपए दिन के आ रहे हैं, तो he definitely would feel something out of the box kind of. So yeah, so that was my first thing. But then I realized that, sir, this is not something that I want to do. This is what everyone does in the market. Meanwhile, I was doing this. I was in school, right? After my school completed, I took an year off. Okay. मैंने 11 colleges में admission लिया. I tried all the fields that were available in the market and were in the trend that time, even including fashion designing as well, which I would never prefer to do. But I did it. Like मैंने हर एक कॉलेज के अंदर 2 से 3 वीक स्पेंड किए. After deciding, after doing all of that, I decided that I should go ahead with IT because that is what I felt and what I see is the future. Okay. Anything related to technology, right? So I joined this specific university, Ganpat University, because these were the only ones offering robotics. Okay. So I started learning robotics, and all of a sudden I was like, I saw some appreneurs, and that time it was the rising period. So I was like, okay, I want to become an appreneur as well. Somehow I want to do something in the app field. So I shifted myself from robotics to BTech in computer science engineering, right? That is where I started my first startup with. So there was this guy in my college who had an idea of getting Xerox and prints for free. Like पीछे के साइड आप एडवर्टीजमेंट्स देते हैं और आगे के साइड आप लोगों को फ्री में Xerox देते हैं. So we met and together we planned the expansion of the same. We did an application. It was called Mafat photocopies. Yes. Yeah. Okay. So we did the expansion for the same, and we acquired around 28 stores in an Uber-like model. जैसे कि गाड़ी आपकी नहीं होती है, but still Uber is running it for you. Similarly, we were not owning the shops for Xerox and prints, but we were running it for them.
by providing free Xerox and prints to the students. Okay. After moving out of that startup, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा मैंने, जो आई गेस आपने भी देखा होगा, कि स्टूडेंट्स, kids, everyone was behind playing PUBG. This is, I'm talking about 2018. Okay. मफत जो था, it was in 2017. तो मुफ्त में मुझे क्वेश्चन है कि जो भी जेरोक्स वाले और वगैरह होते थे उनका क्या ऑफर करते थे? लाइक आप उनको बोलते थे कि आप फ्री में प्रिंट दो एंड We will give you the money of the print. अच्छा, 1 रुपया जो आप लेते हो जेरोक्स का या प्रिंट का, we will give it to you. ओके, एंड यू यूज टू अर्न फ्रॉम द Advertisements. एडवर्टीजमेंट्स। ओके, सो ये जो अभी बॉटल वाले जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके का पूरा। Yeah, exactly. अभी जो बॉटल का जो ट्रेंड चल रहा है कि there is an advertisement and it gives out free water. True. तो ये मेरा, जब से मैंने ये स्टार्टअप किया तब से मेरा एक बहुत फेवरेट सेगमेंट बन गया, that is called the freemium segment, where I realized the power of advertising. मतलब एडवर्टाइजिंग का जो पावर है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं चीज़ों को फ्री करने में, True. राइट? तो दिस इज 2017. 2014 में मैंने मेरा बिजनेस किया था, राइट? 14-15. 16 में मैंने मेरे फादर का बिजनेस ज्वाइन करके आई चेंज द बिजनेस टू द वुमेन्स, राइट? ओके, 2017 दिस वाज द फर्स्ट स्टार्टअप. सेकंड स्टार्टअप, मैंने जैसे बताया कि ऑल माय फ्रेंड्स ऑल द डे सब मिल रहे हैं तो भी पबजी खेल रहे हैं, सब बात कर रहे हैं तो पबजी की बातें कर रहे हैं. 2018 स्टार्ट वाज लाइक दिस. आपको पता होगा, एलन वॉकर आल्सो रिलीज्ड अ म्यूजिक फॉर द सेम. अ लॉट मेनी थिंग्स हैपेंड 2018 में. इट वाज लाइक अ रश फॉर दिस पबजी एंड ऑल ऑफ दैट, बैटलग्राउंड्स बेसिकली. तो तब मैंने एक चीज सोची कि why do people not make money out of it? मैंने एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड की मॉम को बोलते हुए सुना, तुम क्या कर रहे हो, पूरा दिन खेलते हो, इसमें से कुछ मिलता है क्या तुम्हें? एंड दैट इज वेयर इट क्लिक मी. आई वाज सिटिंग इन द रूम, आई डोंट प्ले. आई वाज अ गेमर इन माय स्कूल टाइम, बट उसके बाद नाउ दैट यू आर ग्रोन अप, you have time to do other things. Why would you play all the day? No offense to the gamers, of course, it's a good thing to do. And yeah, तो that time it was like कि अब इसको मुझे freemium model से relate करना पड़ेगा. And I started my research upon the same, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. So I made this one application that was the first esport tournament app platform, which paid you to play PUBG ओके, and any similar games like that. So that is how my biggest startup till now took place. That was called King Tournaments. ओके, So King Tournaments के 2 million users थे, and it was in a span of 2 months. अच्छा, ओके, I made the application for 30,000 rupees. ओके, That's it. It was just an idea. I went to some IT company, local IT company, उनको बोला कि development चाहिए. It was a very quick thing. And yeah, so I made this application which used to pay to play. So that was fun. And 2018 में ही 6 महीने के बाद, in August, PUBG was banned from India. ओके, At the same time, our application was also banned ओके, from. क्योंकि it was related to PUBG It was related to esports. esports. Because yeah, when you list your app on the Play Store and App Store, there are categories that you have to select. तो उस टाइम पे e-sport was open, ओके, जो अब ओपन हो चुका है फिर से, हाँ. but that time it was open. Okay. तो हमने किया and then it was taken down. अब जब ऐप चली गई प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, तो द वर्स्ट पार्ट इज दैट द यूजर एक्विजिशन कॉस्ट गोज ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. You have to make people download your APK every time you have an update. True. You cannot give a manual update. True. तो हमने बहुत सारे तरीके ट्राई किए. We found loopholes in Play Store as well, जैसे कि putting a downloader on the Play Store. Okay. Like Okay. you have to download the downloader, and then in the downloader you can download the APK. True. So that was also a good way, but then they started banning our downloaders as well. So somehow I tried running the platform because it was a very good revenue making thing. But then it was like too much of user acquisition cost, and फिर ऐसे बहुत सारे platforms open हो गए. और उस टाइम पे बेसिकली PUBG भी तो बैन हो गया था. Ban हो गया बैन हो गया था. Exactly. करेगा. So कौन यूज करेगा? People used to do that. मतलब लोग गेमर्स तो कैसे है कि हर जगह से ढूंढ लेते solution. But then I had to give up, and this is where I realized that you don't have to love your baby too much sometimes. You have to move on if it doesn't work, right? So it happens. तो move on किया. I sold the application for X number of amount, and it was a good amount. It was like at least 500x of what I built it for. Okay. So it was a very good thing, and
वो जो एरा था, जैसे पहले मैंने फ्रीमियम, मेरे फर्स्ट स्टार्टअप से फ्रीमियम के बारे में सीखा। मेरे सेकंड स्टार्टअप से मैंने एक ऐसी चीज़ सीखी विच वाज अ कम्युनिटी। ओके, 20 लाख यूज़र जब तुम्हारी एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सिर्फ 20 लाख मैं कह रहा हूँ, अभी तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ चुके हैं एप्लीकेशन के। उससे क्या हो सकता है मैंने देखा, अच्छा। out of a community you can earn x number of money that you want. For example, जब मेरे पास 20 लाख यूजर एक्टिव थे, तो आई हैड अ वर्ड विद वन प्लस, राइट? यहाँ के जो वन प्लस के डीलर्स थे उनके सबके साथ, सो दे ऑफर्ड मी अ गुड डील for sponsoring the tournaments, for sponsoring their ads on my platform. Similarly, जो भी youth targeted audience brands थी, हाँ. they paid me a very good amount because I used to give them the results. True. For example, if it is an education brand that sends students abroad, so they have the best target audience over here. Yeah, true. So I can give them a notification pop-up. I can give them banners inside the app. I can show their ads when they are playing PUBG. So it was like that. Okay. तो तब मैंने रियलाइज किया कि इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग स्टार्टअप्स, इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग अ बिजनेस, इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग दैट दिस, एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ सेम थिंग, दैट इज बिल्डिंग अ कम्युनिटी. एंड इट इज़ प्रूवन बाय थिंग्स लाइक BNI, इफ यू नो BNI, राइट? तो BNI क्या है? एक कम्युनिटी है, True. राइट? फेसबुक क्या है? वो भी एक कम्युनिटी है. इंस्टाग्राम क्या है? वो भी एक कम्युनिटी है. द बिगर द कम्युनिटी, द बेटर इट इज़ फॉर यू इफ यू आर ओनिंग इट, ऑफ कोर्स. Yeah. तो तब से मेरा फोकस ये दो चीज़ों पे था, बिल्डिंग अ कम्युनिटी एंड बिल्डिंग अ फ्रीमियम मॉडल. Okay. This, if you see the Instagram, that also works on that only, no? Yeah, it's The premium app 70%. community. Yeah, exactly. So that is how you build a community, right? By providing free product, free services, and by charging brands for ads. Okay. Freemium model, community. So that is how I'm relating that. Okay. तो ये सेल किया. उसके बाद 2018 में वापस मैंने पापा को बोला कि अभी ऑनलाइन सेलिंग चालू करो. क्या हो गया, अब इतना साल हो गए. दादा को भी बोला सेम चीज़. दोनों का यही प्रॉब्लम था कि कमीशन मॉडल एक तो, और दूसरा कि प्राइस हाई करके बेचना पड़ता. फिर उस पर मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया, और 6 महीने, करीबन 8 महीने रिसर्च के बाद आई काइंड ऑफ फिगर्ड आउट अ प्रोडक्ट, अ पेटेंटेड प्रोडक्ट दैट यू से, जहाँ से एक यूजर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग द एप्लीकेशन टू मेकिंग एन ऑर्डर, आई कैन अर्न 2 rupees, only 2 rupees, but that is a very good thing when it is in a volume game. True. Right? तो वहां से मैंने एक इन्वेंशन किया ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट वी कॉल जिपिट टुडे. Okay. उस टाइम पे उस कंपनी का नाम मैंने रखा था लेट्स बिज. Let's biz. लेट्स बिज, राइट? Okay. सो 2018 खत्म हुआ, 2019 स्टार्ट हुआ. आई ओपन माई फर्स्ट ऑफिस इन अहमदाबाद, एंड दैट इज हाउ द जर्नी ऑफ लेट्स बिज बिगिन. लेट्स बिज का फंडा ये था बेसिकली दैट वी वर कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स फॉर फ्री Okay. without charging any commissions. That time we did a subscription model as well. हमने ट्राई किया कि क्या सेलर्स मान रहे हैं इस चीज़ के लिए. तो we did a very small thing कि 1200 रुपये में लेता था सेलर्स के पास से, और उनको बोलता था कि I'll connect you for free, there's no commission. Something like Just Dial, IndiaMart, a lot. IndiaMart. Yeah, a lot many brands like that. Yeah. तो हो गया सक्सेसफुल, एंड दैट टाइम वी हैड 500 अराउंड सेलर्स इन अहमदाबाद. उनको ऑनबोर्ड किया. वी स्टार्टेड डेवलपिंग आवर प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ दैट. There's a very interesting story to this. जब मैंने ये स्टार्टअप किया तो everyone who were following me on Instagram and Facebook and all of that knew about my previous startups, right? The successful nature of King Tournaments was there. और सबने देखा था कि okay, this guy is into startups and he can do good startups, ऐसा. तो I put down this requirement for a co-founder अच्छा. online. Okay. Okay, I was looking for a co-founder. Okay. There were around 600 applications that I received in, like I did a paid promotion for the same. So there were like 600 inquiries that I received, and out of that I filtered out 170 people Okay. who I did agreements with to become a part of Let's Biz. Okay. तो विजन was simple कि हमें एक ऐसा बिजनेस सोशल नेटवर्क, आई रिपीट, एक ऐसा बिजनेस सोशल नेटवर्क बनाना है जिसमें हम बायर्स और सेलर्स को फ्री में कनेक्ट करें, एंड वी मेक मनी थ्रू एड्स. True. जैसे आपको मैंने मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस बताया उस अकॉर्डिंग.
So I started my journey over there. We hired a company for development. That time we did not have a in-house development team. अच्छा All 170 people were either into sales, either into marketing, telecalling, after sales, support, XYZ hiring, and all of that. Hmm. So yeah, we started with 170 people, and it was like a big thing for me. I was a 19-year-old guy, right? Never managed a team of 170 people. I didn't know how things work. ये आइडिया आपको कहाँ से आया कैसे 170 पीपल को मैं को फाउंडर्स बना देता हूँ It was not an idea. ओके मैं ऐसा करता था, मैंने अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स फिगर आउट किए. आई कॉल देम फॉर अ मीटिंग एट अ कैफे और समवेयर, लाइक ऑल टुगेदर ओनली 30-40 पीपल का बैच में मैं बुलाता था सबको. तब तक तो मेरे पास 10-15 लोग अपने भी थे, घर वाले, जो लोगों के साथ मैं आई यूज्ड टू अटेंड द मीटिंग एंड एवरीथिंग. सो बहुत सिंपल फंडा था. आई यूज्ड टू एक्सप्लेन देम माय विजन. मीटिंग के बाद जैसे मीटिंग खत्म होती थी, आई यूज्ड टू आस्क दैट इफ यू गाइस हैव द सेम विजन और यू कैन शेयर माय विजन विद योरसेल्व्स, यू कैन जॉइन माय टीम. ओके तो वहां से मुझे साइन अप्स आना स्टार्ट हुए. पीपल वर एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट डूइंग सच काइंड ऑफ अ थिंग, हाँ. बिकॉज इफ यू सी यू डोंट फाइंड सच काइंड ऑफ एन स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन, राइट. अब जैसे मैं आपको बताया कि इसके पहले जो मेरा स्टार्टअप था उसको मैंने सेल किया था एट अ गुड अमाउंट. ऑल दैट अमाउंट आई वाज इन्वेस्टिंग इन दिस स्टार्टअप, because of which I had such kind of a good exposure to the city. True. So I had participants from Surat, from Bangalore. So I set up a team everywhere, even from Australia as well. अच्छा There was a 10 people team from Australia, 30 people team from Surat, 30 people team in Bangalore, ओके and a 170 team in Ahmedabad. ओके Now this is my first big thing. Okay. जहाँ पे मैंने इतने सारे लोगों को मैनेज किया हो एक साथ, and it was unimaginable. सुबह के 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक आई यूज्ड टू बी एंगेज्ड विथ एवरीवन, ओके एंड यू हैव टू डू दैट. ओके अगर आप ऑफिस पे नहीं हो तो व्हाट्सएप पे, अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं हो तो कॉल पे. यू हैव टू स्टे इन टच और एल्स द चेन इज गोना ब्रेक. ट्रू अभी तो तब तक तो मेरे को हायरार्की सिस्टम भी नहीं पता था. सी आई ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग, दैट देयर शुड बी नो हायरार्की. अच्छा If it is an intern, if it is a head of, maybe it is a CEO, they all should feel the same in the company. Of course, there's a respect for each role in the in any company, right? But there should be no hierarchy in terms of sharing your ideas, looking towards the growth of the company. I believe that एक intern के पास भी एक ऐसा idea निकल सकता है कि which can change the company structure as well, right? So I've never kept the hierarchy. But then when you run a 170 people company, it is not possible to go without an hierarchy. But that is where the problem starts. When you keep an hierarchy with the co-founders. ओके When they are a co-founder, they feel that everyone is the same, right? True. Now when there is a hierarchy system, there's a problem to it. उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई है. So that is not a good feeling, right? So this is where is the problem. But ठीक है, we did the executions. Unfortunately, COVID came into the market, and like, it was a bad time. When COVID started, we were all excited about it. कि बॉस कोविड है तो अभी हम इसको और एक्सपांड कर पाएंगे. बिकॉज इफ यू रियलाइज, कोविड में ये आइडिया सबको आया होगा. Almost every entrepreneur or someone who wants to do something would have thought about delivering from the kirana store to the doorstep of people to make money out of it. ओके सबके पास आया होगा कहीं ना कहीं माइंड में कि हाँ, मेरे को भी यार ऐसा कुछ करना है जिसमें किराना स्टोर से घर पे आ जाए सामान. We were already into the game ओके with a freemium model, हाँ. right? तभी यहाँ पे कोई Blinkit, Instamart, Zepto कुछ भी नहीं था. बराबर ठीक है, कुछ भी नहीं, जीरो. ये सारे डार्क स्टोर्स वगैरह तो अभी आए 2 साल, 1.5 साल, 2 साल के पहले, राइट? तो कोविड आया. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ मेरे साथ कि जो मेरी डेवलपमेंट की कंपनी थी जिसको हमने हायर किया था, दे वर एंटायरली शट फॉर द सेम. ओके प्रोजेक्ट आधे में अटक चुका था. इतना सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका था. ऑल माई मनी दैट आई हैड गॉट फ्रॉम द प्रीवियस स्टार्टअप वाज इन्वेस्टेड इनटू दिस. ओके इट्स गॉन इन अ ब्लिंक. अब ये होता है डीमोटिवेशन टू द टीम. एज अ फाउंडर आप कुछ भी सहन कर लोगे, राइट? कुछ भी काम भी कर लोगे, कुछ भी सहन कर लोगे. बट पीपल हु आर योर पार्टनर्स, they might not have the same capability of the same thing, right? So there were many negatives about the same, and
न्यूज़ तो आपको पता है कैसे स्प्रेड होती है. People thought that the company is going down, and it was. I would also accept the fact that the company was going down because of course the development stopped, the money was gone. Now we didn't have a business. देखो मैं उस टाइम पे कोई business run नहीं करता था. It was only one startup that I used to do. और मैं I have always been bootstrap. I have never gone to an investor, not even my family, for money. I would never prefer that as well. Okay. So that was the scenario at that time, and we also tried doing it by ourselves. That time I hired a few developers in house, but it didn't work out. The quality was different, and there were a lot many problems with the development. Okay. जैसे ही कोविड ओपन हुआ, ये जो आप बोल रहे हो लेट्स बिज का बोल रहे हो राइट? लेट्स बिज या लेट्स बिज में डेवलपमेंट स्टॉप हो गया बीच में. यस एग्जैक्टली ड्यू टू कोविड. हमने बहुत ट्राई किया कोविड में, हमने बहुत सब काम भी किया True. गूगल मीट पे और ये सब. जैसे कि हमने डेटा कलेक्शन किया, वी डिड टेलीकॉलिंग टू दीज पीपल. 170 टीम, राइट? व्हाट डू यू डू? सब घर से काम कर रहे हैं, सुबह को बैठ के गूगल मीट, शाम को गूगल मीट, दोपहर को वही चल रहा है पूरा टाइम, और कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है. Was there any revenue till then? नो, No revenue. ओनली दिस 500 एंट्रीज ऑफ 1200 रुपीज, Oh. जो 1200 रुपए लिए हमने सब्सक्रिप्शन में लोगों से, दैट्स इट. और ऊपर से उनका प्रेशर अलग है कि आपने 1200 रुपए ले लिए, अभी तक ऐप चालू नहीं किया है, क्या कर रहे हो, 2 साल हो गए, 2 years, राइट? जैसे ही कोविड ओपन हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, आई वेंट टू बैंगलोर, बिकॉज जो मेरी बैंगलोर की टीम थी, इट वेंट वे वीकर देन अहमदाबाद टीम. अहमदाबाद की टीम 170 से करीबन कोविड खत्म होते होते तो 80-90 पे आ चुकी थी. सो इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी काइंड ऑफ अ सिचुएशन. बैंगलोर गया एंड आई स्टेबलाइज द टीम ओवर देयर के ओके आई विल कम अप विद अ प्लान, डोंट वरी, ऐसा वैसा करके. सो आई वॉज एट दिस MG रोड इन बैंगलोर एंड आई वॉज गोइंग थ्रू. वहाँ पे एक पावर बैंक देखा मैंने. देयर वाज अ पावर बैंक ATM ऑफ अ पावर बैंक. तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या है, कैसा है. सम गाय केम डाउन टू मी एंड स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मी देयर प्रोडक्ट, एंड ही आस्क्ड मी अबाउट, आई वाज वेयरिंग दिस लेट्स बिज का शर्ट, एंड ही आस्क्ड मी दैट ये लेट्स बिज का शर्ट क्या है. तो आई वाज लाइक लेट्स बिज इज ऑल अबाउट दिस एंड दैट, और जस्ट डायल आपको सुना होगा, इंडिया मार्ट सुना होगा, उस तरह से एक बिजनेस सोशल नेटवर्क है, बट विदाउट चार्जिंग एनी कमीशंस एंड ऑल. तो ही सेड ओके दैट्स गुड. और फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया. इतने इंसिडेंट के अंदर 2 बॉडीगार्ड आते हैं पीछे से. द गाय हु वाज टॉकिंग टू मी, दे टैप हिम ऑन द शोल्डर के सर इज ही हैरेसिंग यू. एंड आई एम लाइक व्हाट, एंड ही इज लाइक नो नो इट्स ऑल गुड. मैंने कहा कि सर यू आर फ्रॉम विच कंपनी? आई एम द co-founder of Just Dial. Oh. I was like, well, it was like I was blank. हाँ सीरियसली मतलब मैं उस Just Dial उनकी ही कंपनी के बारे में उनको बता रहा हूँ कि मैं आपके जैसा कुछ करने जा रहा हूँ, यार आप and it was like, really? I cannot believe, sir. Okay, why can't you believe when I'm saying it to you? Like, no, sir, I cannot believe this is not possible. And I was shivering. I was like all sweat and everything because, of course, Just Dial एक ऐसी कंपनी जिसको मैंने इतना I respect Just Dial a lot because it is the only search engine in India that was successful more than even Google. Me and you, we have used it since so long, 1998. We have called them, we have asked for the numbers, they used to text it to us and all of that. We saw the transition for it to go from offline to online, and then Google taking it over in 2014. 2014 तक ये जो 16 साल थे तो उतना तो लीड उन्होंने ही किया था. उन्होंने कहा कि आई एम रमनी अय्यर, आई एम द co-founder of Just Dial. गूगल किया उनके सामने, मैं गूगल कर रहा हूँ रमनी अय्यर. I'm like, what? Sir, it's a very, I don't know what to say. I didn't know what to say. I was stuck. Yeah. उन्होंने कहा everything good, शांत हो जाओ. हाँ. मैंने कहा हाँ सर, I didn't know that आप Just Dial के co-founder हो सर. उन्हें मैं उसको नहीं पता था. नहीं है, exactly. I was like यार अब तो पंगा हो जाएगा यार कुछ. मैं बोला यार ये बेस्ट है. तो he called me to his office. We had a 5-hour meeting on the same day. We had lunch together. और वो एक दिन, आज उसको 5 साल हो गए. He has been my mentor for the same, which was the best thing that would have happened. So basically when I met him, he already sold Just Dial to Reliance in 2019 at the valuation of 15,000 crores, right? अब इस बंदे को मैं मिला हूँ और
5 साल से मेरे को ये गाइड कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड हिम द प्रॉब्लम एज़ आई टोल्ड यू दैट आई डिडंट हैव मनी राइट? सेम सिचुएशन जसदार के साथ हुई थी अच्छा इन दैट 1998 टू 2000 Okay. जब उनके पास पैसे नहीं थे एंड ऑल ऑफ दैट they ran out of money. So there are 3 brothers who run Just Dial since they founded Just Dial, right? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तू अपनी एक आईटी की कंपनी खोल ले, अभी ट्रेंड में भी है, तुझे पैसे भी मिलेंगे, साथ में तू उसको इन्वेस्ट करता जाना। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्टर ढूंढ के लाऊंगा, ये करूंगा, तो दे न्यू माई विजन वॉज डिफरेंट। जिपिट के लिए जो मेरा विजन है फ्रॉम डे वन टिल टुडे इज वेरी सिंपल, दैट आई वांट टू हैंड ओवर जिपिट टू गवर्नमेंट एंड देन रन इट फॉर देम। ओके आज के दिन में हमारी गवर्नमेंट के अंडर कोई भी हाइपर लोकल कमिटी नहीं बिठाई गई है। ओके सो ऑल ऑफ दीज एप्स दैट यू सी दे डू नॉट हैव अ स्ट्रक्चर फॉर्म, ट्रू राइट? कितना रिटेल इन्फ्लेशन हो रहा है इसकी वजह से, नथिंग एट ऑल। तो मैंने एक और चीज़ देखी थी ड्यूरिंग दिस टाइम दैट देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड यू नो दिस इन्फोसिस, राइट? उनके एक फाउंडर हैं, उन्होंने दे हैव मेड दिस ब्यूटीफुल इन्वेंशन ऑफ यूपीआई। और यूपीआई का एग्जिस्टेंस कब आया? जब सबने देखा कि पेटीएम इज वर्किंग सो वेल विद द कमीशन मॉडल, व्हाटएवर फी मॉडल और व्हाटएवर यू से, तब वो लोग यूपीआई लेके आए ओके और वो गवर्नमेंट को उन्होंने हैंड ओवर किया एंड द गवर्नमेंट, इट इज अ गवर्नमेंट प्रोडक्ट नाउ, राइट? It is without commissions. It runs on entirely, you know, it's free Yeah. to use UPI. Yeah. And today's time, it's so famous, या right? सो देन लेट्स विजिट वाला जो था उससे आपने वो आपके मेंटर को मिला, देन मेंटर से हाउ डिड यू केम अप विद जिपिट? Yeah, so that I'll come to that. तो दैट टाइम मेरा विजन जो था, जैसा मैंने कहा कि मेरा विजन बहुत सिंपल था कि मुझे ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना है। इस प्रोजेक्ट का रीज़न एक ही है कि नाम कमाना है, रिटेलर्स को हेल्प करना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है एंड ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं वैल्यूएशन गेम में खेलूंगा एंड आईपीओ लाऊंगा, बहुत सारे टाइप से बिजनेस करने के। आई कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तो आई टोल्ड हिम द सेम, तो ही टोल्ड मी अबाउट दिस कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो IT और मार्केटिंग का साथ में। ओके Then there was this one dear friend of mine. I asked him to join me in this business. I gave him a 10% stake in the company, and I started this IT company as well. ओके Meanwhile, तो ये जो 500 लोग थे, उन लोगों को हमने फ्री में वेबसाइट बना के दे दी। बराबर सब 500 लोगों को, almost all of them, we gave them a free website. ट्रू कई सारों ने अपने रेफरेंसेस दे के दूसरे लोगों को भेजा अपने पास। But- In the first year itself, I did a revenue of around 1.6 crores. Just by developing websites and mobile apps and all of that. तो it was like a very helpful thing for me. True. क्योंकि ये पूरा जो पैसा मैं कमा रहा था वो मैं जिपिट में डाल पा रहा था। ट्रू और बिजनेस के भी बहुत सारे तरीके हैं ही, बट स्टिल आई वुड प्रेफर द सर्विस इंडस्ट्री। तो मैंने वो किया बिकॉज इट डजंट रिक्वायर दैट मच ऑफ मॉडिफिकेशन, इट रिक्वायर्स अ ब्रेन टू वर्क लाइक दैट। और फिर क्या हुआ कि आई रियलाइज़ कि ओके ये सब हुआ, अब मेरे जो मेंटर बन चुके हैं तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई लाइफ में एंड अ लॉट मेनी थिंग्स, आउट ऑफ विच केम द फर्स्ट थिंग। जैसे ही उन्होंने मेरा ब्रोशर देखा, आई प्रेजेंटेड हिम, उन्होंने कहा कि इसका ट्रेडमार्क अप्लाई किया है तूने? ओके सो आई फेल्ट वेरी डम एट दैट टाइम कि नहीं सर, अप्लाई नहीं किया है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड ऑल ऑफ दैट। ट्रू स्टार्टिंग में किसको हाँ। पता हुआ इसमें? See, इट्स नॉर्मल। द वे आई सेड दैट आई वाज वीक इन फाइनेंस, या similarly I was very much weaker in the legal aspects of a company. दैट्स completely fine बिकॉज़ सबका ऐसा ही होता है। किसी को 90% लोगों को आज भी नहीं पता है। Exactly. तो सबसे पहले तो मैंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया। Unfortunately, there was this company in Delhi who does all of this. वो ऐसा करते हैं कि अगर आपकी कंपनी आपने कुछ कहीं लॉन्च की, मार्केट की है, तो अगर आपसे पहले वो ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं, then you have to buy it from them. Yeah, there are companies like this who do that, ओके which was a very funny thing for me. Then I was like, अब क्या? Then I have to of course change the company name because अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो उन्होंने मना कर दिया कि it cannot proceed. The best thing, ट्रेडमार्क तो मुझे मिल गया, मैंने कंपनी का नाम चेंज किया जिपिट और उसका ट्रेडमार्क मेरा रजिस्टर हो गया एंड इट वाज अ वेरी गुड थिंग। बट देयर वाज दिस वन थिंग दैट आई लर्नड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही टोल्ड मी, दैट यू कैन पेटेंट योर प्रोडक्ट। ओके आई वाज वेरी मच अनअवेयर अबाउट दिस पेटेंट थिंग। ट्रू उन्होंने मुझे एक लीगल टीम से मिलवाया एंड विच वाज हिज लीगल टीम। आई एक्सप्लेन देम द आइडिया, दे टोल्ड मी दैट आई कैन पेटेंट माई आइडिया एंड दैट इज वेयर द थिंग्स चेंज फॉर मी। ओके तो यूपीआई जैसा ही आपका जिपिट का आइडिया था, हाइपर लोकल डिलीवरी फ्रॉम ग्रोसरीज।
Yes. So, So basically, the idea is हाँ, creating India's one and only hyper local search engine. True. Without charging any commissions okay. और चार्जेस. तो मैंने उसको पेटेंट किया एंड सो बेसिकली दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल द ऐप प्रेन्योर्स आउट देयर. आप अपनी ऐप को एक टेक्नोलॉजी या एक डिवाइस से अगर रिलेट कर सकते हैं तो यू कैन पेटेंट इट. Okay. Not nobody knows this in the market. Almost none of the entrepreneurs, whoever I tell this to, they're all like, "This is possible, seriously?" And then I show them my patents. Okay. So a lot many people who don't know about this, they should be aware about this. You know, this should be taught in the schools itself, in the Okay. colleges itself. Okay. That if you have something, because we as humans are made to innovate, True. right? तो कुछ ना कुछ नए आइडिया सबको आते हैं. Then why not patent it? आज आप रेशियो देखो चाइना में पेटेंट्स का और वही रेशियो आप इंडिया में देखो, इट इज 100 times मोर इन चाइना. Okay. बिकॉज ऑफ विच दे आर लीडिंग इन द इंडस्ट्री, राइट? आज के दिन में क्यों सब एक ही चीज कर रहे हैं, चाइना से सामान ला के बेच रहे हैं, हाँ. या तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आके उनको असेंबल कर रहे हैं. वॉट एवर, एवरीथिंग इज कमिंग एंड सोर्स फ्रॉम चाइना. वाई आर यू नॉट बीइंग इंडिपेंडेंट? बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. None of us is trying to be innovative over here in the market. All we are doing is trading. All we are working for something like Google, Meta, right? What are we doing as a service provider? मैं अगर एक IT company खोलता हूँ, who am I working for? Indirectly, if I'm running a marketing, IT, digital marketing, social media company, I'm working for indirectly Meta. True. I'm spending on ads True. for my clients. I'm spending on Google keywords, YouTube. पैसा तो बाहर ही जा रहा बाहर ही जा रहा है. है. इनोवेशन की तो बात नहीं. इनोवेशन की बात ही नहीं हो रही है. सो दिस इज व्हाट आई फील द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द यूथ एंड द इंडियन सिस्टम राइट नाउ इज दैट वी आर नॉट बीइंग इनोवेटिव. अभी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बट एज टाइम इज बीइंग, या मैं एक चीज देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा इनोवेशन आ भी रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है. बट देन अगेन, यू नो, हाउ इज इट इनोवेटिव? चाइना ने ड्रोन बनाया, ओके, हमने वही सेम चीज बना दी. Okay. व्हाई आर वी नॉट क्रिएटिंग समथिंग न्यू? Okay. राइट? तो मैं उस चीज पे बहुत फोकस करना चाहता हूँ इन माय लाइफ, दैट क्रिएटिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू थिंग्स इन द. That is why you particularly patent your idea. Yeah, exactly. Okay. So that is the thing. So currently I have applied for more than 16 patents Okay. and I have them. Yeah. So Okay. अभी आपके कितने टीम मेंबर्स हैं Zipit में? so currently we have a team of 40 people who are working in the entire sales department specifically. Okay. And we have a team of 10 developers to be specific who are working in the technology part. I have a CTO who is ex Google again. Okay. We have around 2000 delivery boys in Ahmedabad. Okay. And talking about my marketing, legal. So overall, talking about my in-house team, we are a team of around 80-90 people. Okay. So that is, yeah, that is what the team size is right now. Okay. In Bangalore, we have a team of 10 people right now. In Surat, we have a team of 10 people right now. So Okay. that is how we're divided. So जितने भी विजिट वाले पीपल थे, Let's be one. हाँ, उन लोग को ही आपने Zipit में बाद में ट्रांसफर कर दिया. वो विजिट वाला जो था उसको आपने वेबसाइट बना के एंड यू सर्व टू द कस्टमर्स, उससे आपने पूरा बिज वाले बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया मार्केटिंग में. It was too late to do that, by the way. या So unfortunately, वो 170 लोगों में से आज के दिन में सिर्फ एक ही बंदा है जो मेरे साथ है. ओके. That's it. All the 170 are gone. And I would never say that it was their fault. It has always been my fault. If I would have done the right thing at the right time, this would have never happened, right? ठीक है, कोविड मेरे हाथ में नहीं था, सिचुएशन पूरा. बट अगेन आई कुड हैव डन समथिंग एल्स इज व्हाट आई फील. क्योंकि देखो, नॉट एवरीवन हैज़ द सेम कैपेबिलिटी एंड द विजन, एज आई सेड अर्लियर, कि मुझे पैसे नहीं कमाना है इस प्रोडक्ट में से, मुझे नाम कमाना है. सबको वो सबका सॉल्यूशन नहीं होता है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल are either manipulated or are motivated towards money. Oh. Maybe it is the life situation, right? थोड़े लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं, leave the country. So a lot many things. I mean, you can never have the same vision with them. But ठीक है, that is how things worked. I definitely have a wish कि आगे जाके जब एक बार Zipit successful हो जाता है, I want the same 170 people to be a part of my co-founding team again.
Okay. and I'm ready to accept all of them. Okay. Even they are ready to accept me. Mm-hmm. It's just that because of the circumstances and vision difference. No, even the vision was same. Okay. All of us shared the same vision. Okay. But through time, the vision changed for all of them. True. Because of the situations. True. So that was there. Okay. And why did you specifically choose the name Zipit? So my reason to choose Zipit, there were two reasons. First was quick. Hmm. So Zip, Okay. it was like quick. Okay. And it can be anything. Okay. It can be a towel, it can be coffee, it can be a book. Why it like आप देखोगे आज सब जगह पे जैसे कि Blinkit. हाँ. It word बहुत So- यूज हो रहा है. It is the same situation, right? It can be anything. Okay. The philosophy behind it is very simple. Okay. Not particular product. It can be anything. Anything. It can be anything. True. So when I put down this trademark, उसके बाद I have Blinkit and I was like, dude, see these people have a lot of money, right? Right. और ये लोग सब डार्क स्टोर मॉडल पे वर्क करते हैं. I was like, यार ये तो अब लोगों को ऐसा ही होगा, of course, कि मैंने ही कॉपी किया है नाम, right? People were like, यार Zipit ऐसा वैसा. And I didn't want to market my brand. जैसा मेरा Let's Biz का था एक्सपीरियंस हुआ, उसको मार्केट वार्केट किया, अच्छा सा मैंने किया, everything. Because of which my trademark was taken away from me. Okay. The name was taken away. I love the name Let's Biz, but ठीक है, with time we had to change. So it was like Zipit. Okay. And the color theme that we have selected, green. Yeah. It is for freshness. It is for a trust. It is for a go green kind of a thing. It is like for the environment. So yes, that is why we chose Zipit and the color green. Okay. And how did you came up with the idea of hyperlocal delivery? Hyperlocal delivery in the sense, sorry. Like you, how did I come with the hyperlocal idea? Yeah. It was always there. Okay. So it was started with the porter, na? No. So even in today's time, the riders that we are associated with, these people work for all the companies that you see in the market. Okay. They will be wearing a Porter t-shirt, they'll be wearing a Zomato bag, and they'll be wearing a Swiggy helmet. True. So these riders have a very simple thing, Huh. that whoever gives them the order, Hmm. they'll go to them. So the only task was that I had to make them download the application, for which I made a WhatsApp group. मैंने क्या किया, सब कंपनी के डार्क स्टोर्स पे गया, उधर बाहर खड़ा रहा. So these riders have their own union, जहाँ पे मैं सबसे पहले पहुंचा, Okay. और उनको जितना पैसा दूसरी कंपनीज देती है उससे 2 रुपए ज्यादा ऑफर किया. बराबर है. So they have my application right now. And the best part is that I do the fastest deliveries. Not even Swiggy, Zomato, Blinkit, Instamart, Zepto. अच्छा. None of them can do a faster delivery than me. Okay. I have a proven record of delivering it in under 2 minutes or something. 2.45 or something. Okay. Which has been possible because of the local market. Because of the local stores. Okay. डार्क स्टोर मॉडल क्या है कि हर 3-5 किलोमीटर के अंदर आपका एक डार्क स्टोर होता है, वहां से आपको सामान लाके दिया जाता है. True. मेरा तो आपके घर के नीचे ही है दुकान, Okay. वहां से ही ऊपर लाके देना है, खत्म. बराबर है. So that is how Zipit. बट हाइपरलोकल डिलीवरी में एक चीज़ की दिक्कत नहीं आती कि आप अगर जो आजू बाजू शॉप से माल सामान लेते हो. Correct. अब एग्जांपल लेते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टोर के ऊपर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, एंड दैट पर्टिकुलर चीज़ जो है, जैसे कि कॉफ़ी लेते हैं, वो कॉफ़ी ये स्टोर पे अवेलेबल नहीं है बट बहुत दूर है, कोई दूसरे स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, जो क्लाइंट ऑर्डर करना चाहता है. Correct. तो अगर जो उसको तो नीचे से नहीं मिलेगा, देयर वेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डार्क स्टोर मॉडल. There are 2 solutions to this. ओके. ठीक है. फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि हम ऑर्डर को स्विच करें. जैसे ही, सो बेसिकली देयर इज अ मॉडल इनटू दिस. हमारा 2 मिनट का एक टाइमर होता है. अगर सेलर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको एक कॉल जाता है ऑटोमेटेड, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑर्डर और डिक्लाइन द ऑर्डर. ऐसे हम 2 कॉल करते हैं, हर 2 मिनट पे एक कॉल. अगर वो ऑर्डर पिक नहीं करता है, अगर वो कॉल पिक नहीं करता है, तो ऑर्डर डायरेक्टली दूसरे स्टोर को दिया जाता है. अच्छा. ठीक है. वहां से हम ऑर्डर उसको डिलीवर करते हैं. बराबर है. नाउ कम्स द सिचुएशन, द सेकंड थिंग दैट आई वाज गोना टेल यू, कि जैसे ही एक बार ऐसा सिचुएशन आता है कि ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया गया एंड द सेलर डिडंट पिक अप, वी डू अ स्ट्राइक ऑन दैट स्पेसिफिक स्टोर, और इफ दे डोंट हैव द प्रोडक्ट अवेलेबल, वी डू अ स्ट्राइक. ओके. ऐसे सिर्फ 4 स्ट्राइक अवेलेबल है हर स्टोर के लिए. बराबर है. कितने स्टोर्स होंगे अभी? अराउंड 1200 इन अहमदाबाद. इन बैंगलोर वी हैव अराउंड 200 स्टोर्स. अच्छा, आपने उसको पूरे मतलब स्टेट वाइज पूरा एक्सपेंड किया हुआ है? यस, एग्जैक्ट. नो, नॉट स्टेट वाइज, सिटी वाइज फॉर नाउ. ओके.
But this is just to prove the model to the government. जैसे आपको कहा कि we are already in talks with the Gujarat government Okay. to take it to the central and whatever. Yeah, explain me this, like आपने क्या बात की गवर्नमेंट से? So What is the planning behind it? yeah, so I had some friends who are into politics right now, and they're doing quite good as well. तो मैंने उनको इस चीज़ के लिए अप्रोच किया, मेरे विजन उनको बताया, तो they were also fantasized कि ठीक है यार, ये मतलब गवर्नमेंट को देना चाहता है, एक बार मिलाते तो हैं. So they took me to the social minister, they took me to the chief minister's team and all of that. और उन सबको मिला, उन सबको एक्सप्लेन किया मेरा आइडिया, and they all were also happy about the same because they are the users. एक बहुत स्मार्ट मूव मैंने किया था. Before I approached the chief minister's office, which is situated in Gandhinagar. Gandhinagar is a small city, very small. तो मैंने क्या किया कि मेरी टीम को पहले उधर ही लगा दिया. मैंने हर दुकान के दरवाजे पे एक पुश एंड पुल वाला हमारा जिपिट का लगवाया. We put down standees, we did hoardings, we did this danglers, we did all of the marketing campaign in Gandhinagar itself. ये एक महीने पहले किया जब मैं सीएम सर के ऑफिस जाने वाला था उनको मिलने के लिए. तो when I went there, the team already knew about me. Okay. कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ मार्केट में, and all the existence. True. So now all that relies on my executions. There is a specific some number of target that they have given to me, after which they will take the handover. Okay. And I will run it for them. अच्छा. Yeah. Okay. So that was the thing. And when you started out this Zipit, आपने क्या क्या challenges starting में face किए? तब तो डार्क स्टोर वाला पूरा मॉडल नहीं आया था. कुछ भी नहीं था. हाँ. The biggest challenge in my market is onboarding the brands, products. Okay. जैसे कि एक हमारा सेलर है, it is a grocery premium grocery store. They have 30,000 SKUs. Okay. This is the biggest challenge that because of which nobody has been able to digitalize the retail segment. सबने ट्राई किया. Even Just Dial came up with a plan in 2013, way before any of today's company existed. 2013 में Just Dial ने JD Plus engine लॉन्च किया था. Okay. Which is available on YouTube to see. अमिताभ बच्चन ने ही लॉन्च किया था. अच्छा. They used to digitalize the entire store. Products को ऑनलाइन लेके जाते थे, एक POS देते थे, and you can deliver it in minutes. Kind of a situation. जो आज हम देख रहे हैं. Just think about way back when he thought about that. Yeah. Groffer also started in 2014, right? Before that, I think Just Dial. Just Dial. Yeah. These people were the first comers. First come. Yeah. Yeah. The first challenge was to digitalize the retail stores. True. उनके products upload करना. जैसे मैंने बताया कि example, there was a brand that is called the Paras Gourmet Stores. मतलब this is a local store that has 30,000 SKUs. Yeah. Now, जैसे कि अब मैं 10 लोगों को भी अगर बिठा देता हूँ, पूरे दिन में प्रोडक्ट अपलोड करो बैठ के, फोटो खींचो, उसको ऑनलाइन ढूंढो, अच्छा फोटो शूट करो, उसकी प्राइस मैच करो, whatever, XYZ. It would take me at least 2 to 3 months to cover a store, a single store. अब मैं दूसरे स्टोर पे गया तो मैं यहाँ की 30,000 प्रोडक्ट्स वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ. This another store has its own products, right? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो मैंने फेस किया, बट आई फाउंड अ वेरी गुड सॉल्यूशन टू इट. देयर वर अ लॉट मेनी सॉल्यूशंस टू दैट. आई फाउंड अ वेरी गुड सॉल्यूशन टू इट. आई रियलाइज्ड कि हर स्टोर के अंदर ये 1000, 2000, 3000 प्रोडक्ट्स तो है ही जो होने ही वाली है. बराबर है. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैंने ऐसा सॉल्यूशन लाया कि 5000 प्रोडक्ट ऐसी लिस्ट करवाई जो एग्जिस्ट करती है हर स्टोर के अंदर कॉमनली. बराबर है. ठीक है. वी डिवाइडेड द सेगमेंट इनटू 3 टाइप्स, 5000, 10,000 एंड 1000. ट्रू. कोई लोकल स्टोर बेसिक लगे तो उसके अंदर करीबन 500 एक प्रोडक्ट होंगी, तो वी जस्ट हैव टू वेरीफाई एंड देन जस्ट पुट इट लाइव. फिर वो सेलर उसको वेरीफाई करता है, अगर उनके पास नहीं होती तो वो उसको रिमूव कर देता है. बराबर है. तो जैसा ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम था. दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सेलर्स को कन्विंस करना डाउनलोड द ऐप, बट देन इट वेंट ईजियर फॉर मी. मेरे लिए बहुत इजी था सेलर्स को कन्विंस करना. जैसे कि मैं फूड सेगमेंट की बात करता हूँ, तो मैंने फूड सेगमेंट को जाके बताया कि मैं 0% पे करूंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ना, 0% पे तो हर एक कंपनी लेके आती है, पहले कम परसेंटेज चार्ज करती है. स्विगी आया था मार्केट में 5-7% के साथ, आज के दिन में वो भी 30% पे आ चुका है, 20-25% पे आ चुका है. तुम भी वही करोगे? मैंने कहा सर, इट इज़ अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, लाइफ टाइम गारंटीड लिख के दूंगा, कभी भी मैं कमीशन नहीं लूंगा, सिंपल सा चीज़ है. उनको पूरा मॉडल समझाया एंड दे आर लाइक ओके. तो मैंने सीधा क्या किया, एसोसिएशंस के पास जाना चालू कर दिया.
I went to the grocery association. I went to the food association. I told them about this and they were all happy about it. They gathered all the sellers, सबने appreciate किया, सबने अपने stores बनवाए. So it was very easy for me to convince them. जैसा मैंने कहा कि product approach was a very different and a very difficult part. अब food segment की बात करें तो पेट पूजा करके एक कंपनी है. हाँ. So we were in the same building when we started together in 2019. Okay. They were on the 6th floor or something and we were on the 4th floor. तो कहीं ना कहीं connection तो था ही हमारा and they realized that okay this company is reached here now and all of this. So they helped us a lot with the product upload thing for the food segment. Okay. Grocery के लिए मैंने मेरे solutions ढूंढ लिए थे as I told you earlier. This was the first challenge. Second was the rider thing. हाँ. But again rider के लिए भी मैं association के पास गया. I requested them 2 रुपए ज़्यादा दिए and there's this one very unique thing about Zipit. This is into the future introduction, but I have patented it already. Okay. ये कोई ऐप नहीं करता है. देखो, just think about it. हर ऐप किस पे डिपेंडेंट है? उनके राइडर्स पे. Okay. अगर राइडर्स नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल इफ पोर्टर डजंट हैव राइडर्स, जो आज के दिन में सिनेरियो होता है कई बार कि पोर्टर के पास राइडर्स नहीं आते, 10-15 मिनट यू हैव टू वेट. व्हाई? बिकॉज दे गेट whatever reason, उनके पास कुछ और काम आ गया, बिजी हो गए, कम उधर वो एरिया में कम राइडर्स हैं, कम पैसा दे रहे हैं, whatever XYZ रीजंस. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. आई जस्ट थॉट अबाउट इट. इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते कि सारे राइडर्स सिर्फ जिपिट के हो जाएं? कैसे पॉसिबल है? मैं दिमाग लगाना शुरू कर दिया फिर से. मैं बोला भाई कुछ भी करके मैं सारे राइडर्स को सिर्फ जिपिट पे रखना चाहता हूँ, कुछ तो करूंगा मैनिपुलेट में मार्केट को. सी दिस इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी नाउ, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. मेरा माइंडसेट तो हमेशा वही है कि गवर्नमेंट ही रन करेगी इसको, तो कैसे सिर्फ जिपिट का काम करे. तो मैंने कमीशन मॉडल डाला फॉर द राइडर्स. दिस इज अ पेटेंटेड थिंग. लॉन्च नहीं किया अभी, फ्यूचर में सोचा भी है कि करेंगे तो कैसे करेंगे वो सोचेंगे. अभी क्या होता है, राइडर ए से बी जाता है, उसको उसके डिलीवरी का पैसा मिल जाता है. सिंपल. मेरी सिचुएशन में क्या है, ए से बी लेके जाएगा, जितना भी ऑर्डर का टोटल होगा उसका एक सम अमाउंट उसको मिलेगा विथ द डिलीवरी फी एज वेल. ओके. अब सब राइडर्स क्या करेंगे, मैनिपुलेट हो जाएंगे टू यूज जिपिट इन अ गुड वे बिकॉज दे गेटिंग पेड मोर. आफ्टर ऑल यही लोग हैं जो पूरा दिन धूप में बारिश में बाइक्स पे पूरा दिन मजूरी कर रहे हैं 1000 रुपए के लिए, क्यों ज्यादा ना कमाए. दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. करंटली अगर जो अभी अपने देखने जाएं तो जिपिट कौन सी सिटीज में अवेलेबल है? सो करंटली वी आर अवेलेबल इन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत एंड बैंगलोर. ओके. तो अगर जो कोई भी इंसान ऐप के ऊपर आता है तो वहाँ से वो जो भी ऑर्डर प्लेस करेगा वो लोकल स्टोर से ऑर्डर प्लेस करेगा और नियर बाय से उसको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा. करेक्ट. ओके. और उसमें श्योरिटी होती है कि 10 मिनट्स डिलीवरी या नो, देयर इज नो सच श्योरिटी दैट वी प्रोवाइड. लाइक व्हाई टू फूल एनीवन, राइट? मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि 10 मिनट का कमिट करके मैं भी 12 मिनट में भी दूँ. ठीक है. सो वी गिव अ टेंटेटिव टाइम दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मैप्स API ऑफ कोर्स, कि इस लोकेशन से इस लोकेशन में कितना दिखा रहा है. द वे वी यूज गूगल मैप्स, राइट? उस अकॉर्डिंगली मैं उनको एक प्रिडिक्शन देता हूँ, बट वी ऑलवेज पुट द स्टार ओवर देयर विद द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट वी आर नॉट कमिटिंग दैट, ओके. बट वी ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. जैसा कि आपको मैंने कहा कि नीचे से ही लाके ऊपर देना है, तो इट इज अ फास्टर डिलीवरी फॉर अस. ट्रू. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके. एंड कोई जब आप ऑनबोर्डिंग करते हो तो एनी स्पेसिफिक नीश जिसको आप ऑनबोर्ड करते हो, जैसे कि ग्रोसरीज हो गया या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आप करते हो, बुक्स भी करते हो, एनी बुक स्टोर कोई भी? एनी लोकल स्टोर दैट इज अवेलेबल, इवन होम सेलर्स. ओके. कई सारे ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं मार्केट में जो घर से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस इन्वेंट करके एज आई सेड कुछ ना कुछ बना के बेचते हैं. सो वी डू इट फॉर देम एज वेल. So it's 100% local. Anyone can get onboarded. Anything, anytime, anywhere. Is Zipit. ओके. एंड ऑर्डर्स कैसे मैनेज होते हैं आपके वहाँ पे? It's all automated. ओके. It's all entirely automated. तो मतलब डिलीवरी बॉय जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है? Yes. अच्छा, पूरा का पूरा सिस्टम ऑटो पे चलता है? Automation पे है पूरा. Okay. So manual part कहाँ पे आता है? I'll tell you. First is the support. वहाँ पे मैनुअल हमें पुश करना पड़ता है अगर कुछ इशू आते हैं ऑर्डर्स में, तो वी टेक केयर फॉर द सेम. सेकंड इज वेयर वी आर ऑनबोर्डिंग द ब्रांड्स और वी आर हेल्पिंग देम विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग. थर्ड इज गेटिंग इंटरेक्टिव विद द कस्टमर्स,
एंड या सो दैट इज़ देयर। बाकी तो जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया सेलर को, सेलर ने एक्सेप्ट किया, डिलीवरी बॉय असाइन हुआ, वो सेलर के पास जाता है, सेलर से पिकअप करके कस्टमर को देता है, एंड दैट्स द एंटायर जर्नी, इट्स डन। ओके। और इसमें ऑर्डर्स मैनेज करने के टाइम पे मतलब अ, कोई आप बैग प्रोवाइड करते हो अपनी खुद की ब्रांड की, या जिपिट की बैग यूज़ करो? तो देयर आर टू थिंग्स। अगर मैं जिपिट की बैग खुद की देता हूँ तो आई कैन नॉट चार्ज डिलीवरी, which is a legal thing, that if you're marketing your product on the delivery bag, you cannot take delivery. इस पे एक केस भी हुआ था रिसेंटली, कंपनी वाज sued for the same, I would not name the company, so that is there, but we give them the bio bags because we definitely don't want के the world to be filled with plastic, as you see right now, हर एक जन प्लास्टिक बैग लेके घूम रहा है या ऐसा कुछ। even in the environment bags, I don't trust them. ओके, सो आई ऑलवेज आई प्रेफर बायोडिग्रेडेबल बैग्स, तो वो हम हर सेलर को देते हैं और वो सेलर्स हमसे बाय करते हैं, ओके, ओके, तो उनके लिए भी कन्वीनियंट है। दे ऑल्सो वांट कि उनका प्रोडक्ट सेफली पहुंच जाए। ओके। एंड व्हाट इज़ द रेवेन्यू मॉडल लाइक? अभी जो भी आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है उसमें आप रेवेन्यू कैसे कमाते हो? ओनली थ्रू एड्स, ओनली थ्रू एड्स? एंड दैट इज द। डिलीवरी बॉय को भी आप पैसे देते होंगे? हाँ, बट वो डिलीवरी चार्ज तो कस्टमर पे करता है ना। अच्छा, वो कस्टमर पे कर। हाँ, सी इन माय सिचुएशन द थिंग इज, जैसे कि आप खाना मंगाते हो तो वी डोंट चार्ज एनी कमीशंस, एज यू नो, लाइक द अदर एप्लीकेशंस फॉर डिलीवर फूड, राइट? तो मेरे केस में आपको खाना सस्ता पड़ता है बराबर है। बहुत सारी जगह पे, क्योंकि ब्रांड्स क्या करती है, अपना प्राइस हाइक करके आपको सेल करती है। ट्रू। यू एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन। आप रेस्टोरेंट में जाके खाओ और आप घर पे मंगाओ, बहुत डिफरेंस आने ही वाला है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिलीवरी तो आप पे कर ही रहे हो, इट इज द कन्वीनियंस चार्ज दैट यू आर पेइंग, द कमीशन दैट यू आर पेइंग इज द कन्वीनियंस चार्ज, उसको रिमूव किया जा रहा है हमारे साइड से। ओके, सो दिस इज वेयर वी आर इम्पैक्टफुल। ओके। तो इसमें कैश बर्न नहीं होगा जब आप स्केल करोगे? इट विल बी देयर, बट देन आई एम गिविंग इट टू द गवर्नमेंट। नो, अभी तो पूरा कैश बर्न बूटस्ट्रैप ही हो रहा है। अगर जो आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया होता तो आपको लगता है कि इसी मॉडल पे आपको करना पड़ता है जो ज़ोमैटो, स्विगी, इंस्टामार्ट जो भी कर। और इन कंपनीज से बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो फ्रीमियम मॉडल को प्रूव कर चुकी है। इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, दीज ऑल वर्क ऑन द फ्रीमियम मॉडल, राइट? वीडियो दिखा रहे बट ऐड दिखा रहे ना बीच में, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से कनेक्ट करवा रहे बट ऐड दिखा रहे ना बीच में। आई वुड हैव एनी डे गॉन फॉर द आईपीओ गेम। मुझे भी आता है सीरीज में रेस करना, आई हैव बीन पिचिंग टू इन्वेस्टर्स, आई हैव बीन इनटू दैट मार्केट, बट दिस इज अबाउट द विजन। So it is okay to burn cash for now. I have a certain target. It is a very small target that I'm gonna reach very soon, and then the government takes over. ओके। एंड आपका एवरेज डिलीवरी टाइम क्या रहता है? So currently our average delivery time is something between 6.5 minutes. ओके, And बढ़िया है ना? तो for the grocery segment, ओके, for the food segment, it is around 20 minutes, बराबर। which is an average time. एंड एवरेज ऑर्डर पर डे कितने रहते हैं अभी? So we have around 300 orders a day right now. क्या आप बात कर रहे हो? But 300 ऑर्डर्स पर डे? that's too less. कहाँ से मतलब कौन सी सिटीज से ज़्यादा आता है? Only in Ahmedabad. ओनली इन अहमदाबाद, बैंगलोर और वगैरह? छोटे मोटे। आगे का आपका विजन क्या है बेसिकली? So the vision is very simple. I want to cover at least 75% pin codes of India. In the next few years, as we see that the mobile market is expanding, अभी 40 से 50-60% तक लोगों के पास मोबाइल डिवाइसेस सब पहुंच चुका है, आगे बढ़ता जाएगा। And even the demand for hyperlocal is growing from tier 1 to tier 2 cities as well. To tier 3 cities, I don't know, but it will grow. So I want to be there. I want to be a part of this big hyperlocal thing, and this is my vision. Ke everyone is using this technology of mine for anything that they want locally and for any service. अभी मुझे 4 चीज़ बताओ जो आपने थ्रू आउट अपनी जर्नी में सीखी हो, जो आपको ऐसा लगता है कि यार पहले ये कर लिया होता तो दैट वुड हैव बीन मोर बेनिफिट फॉर मी राइट नाउ। So the first thing is getting a better team, a good team. पहले से इतना अच्छा स्क्रीनिंग किया होता टीम का तो इट वुड हैव बीन अ वे डिफरेंट थिंग। जब मैं जो स्क्रीनिंग मैं आज के दिन में करता हूँ तो वो बहुत डिफरेंट है पहले से। सेकंड इज माय मार्केट अप्रोच। जैसे मैंने पहले क्या किया कि विदाउट हैविंग अ स्टेबल इनकम और एनीथिंग, आई स्टार्टेड पुटिंग ऑल माय मनी दैट आई हैड सेव्ड और एवरीथिंग इनटू माय आइडिया। तो मैं स्टार्टिंग से ही एक बिजनेस रखता अपने साथ में, जो एक बिजनेस ऑपरेट हो रहा है ऑटोमेशन पे, और उसका पूरा पैसा मेरे स्टार्टअप्स में जा रहा है।
third thing that I would have been doing is that मैं legal aspects को पहले ही पढ़ लेता. Like I wanted to, now also I want to study. मैं try करता हूँ कि जब भी time मिला है try to read a lot of legal stuff and everything. But वो बहुत beneficial होता है. And the fourth thing is getting in touch with the government at an early stage. अगर रमनी सर को मिलने से पहले भी अगर मैं इधर तक पहुंच चुका होता तो आज मुझे कुछ और ही एक्स्ट्रा सपोर्ट और कुछ मिल चुका होता जिसकी वजह से मैं आज मोटिवेशन लेके आगे बढ़ चुका होता बहुत. सो दीज आर द 4 गुड थिंग्स दैट आई फील. बट ठीक है, विद टाइम एवरीथिंग कम्स डाउन विद टाइम, राइट? ये भी एक लर्निंग ही है. वी कैन नॉट गो बैक टू द पास्ट. True. बट फॉर द पीपल हु आर कमिंग अप विद देयर ओन स्टार्टअप्स एंड समथिंग लाइक दैट, दीज आर द 4 थिंग्स यू शुड फोकस अपॉन. ओके. एंड एक ऐसी चीज़ बताओ जो अगर जो कोई स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसके लिए क्या एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है? यू Either हैव टू it can be dedication, either it can be something कि no matter what आपको वो चीज़ execute करनी है, there is no time, ऐसा rest time, work life balance ऐसा कुछ नहीं हो, Yes. something like that. So, as you said, work life balance, right? मेरी ये जर्नी में मैंने एक चीज़ बहुत ध्यान से देखी है. वो ये है कि गिविंग अप इज़ अ वेरी इजी थिंग. यू कैन गिव अप ऑन एनीवन, एनीथिंग, एनी टाइम. नॉट गिविंग अप इज़ द की टू गो अहेड, राइट? जैसे कि मैंने बताया कि मैं 6 साल से यही कर रहा हूँ, एक ही चीज़ कर रहा हूँ. तो दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, दैट इज़ माई कंसिस्टेंसी, दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट. आज के दिन में भी वो ही अप्रिशिएट किया जाता है. People say that you have to shift, keep on shifting your field, you have to try new things. I believe that if you have found a vision, एक सीधा विजन है तो उस पे फोकस करो. Don't be manipulated by anyone else. Yeah. If you have a vision, simple. आपसे बड़ा है उम्र में, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, doesn't matter at all. If it is your vision is on the right path. और अगर आपको आगे बढ़ना ही है कोई चीज़ को लेके तो उसको फिर भूल जाओ, लाइफ में कुछ और है. Forget that you have a girlfriend, forget that you have a parent, forget that you have a life. All you have to focus upon, forget that you want to do parties, anything. All you have to focus upon is one thing. That is your vision. क्या है vision? For example, in my case, I want to take this to the next level. Zipit को मुझे हर एक जन को यूज कराना है. अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये आवर में. What is my next hour plan? So start planning your next hour. जैसे कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, जिसकी वजह से वो जो मेरा गोल है उसके टूवर्ड्स मैं एक स्टेप ले रहा हूँ. Do one मेरे पास a day. हाँ, it's not like that. What I would suggest is do it. Simple. अगर मैं यहाँ से जाता हूँ मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ तो आई एम नॉट क्लाइंबिंग दैट स्टेप, neither I am going down, but I am staying there. अब मैं अगर यहाँ से जाता हूँ मेरी ऑफिस, मेरे टीम से मिलता हूँ, आई एम मीटिंग न्यू पीपल, आई एम ऑनबोर्डिंग न्यू ब्रांड्स, आई एम मीटिंग राइडर्स, टेकिंग देयर रिव्यू, आई एम मीटिंग माय डेवलपर्स. तो ये क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है. सो दिस इज माय सजेशन, कंसिस्टेंसी, फोकस, दैट्स इट. भूल जाओ सब, जब तक उधर नहीं पहुंच जाते. जैसे ही पहुंचे ना, देन यू हैव योर टाइम. फिर उसमें कितना भी टाइम लग सकता है. जस्ट डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. मुझे पर्सनली बहुत It's a ज़्यादा pleasure. इंस्पायरिंग लगा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा. बिकॉज आप पिवट कर सकते हो अभी भी, या कर सकते थे थ्रू डार्क स्टोर, थ्रू डिफरेंट स्टफ, बट यू वांटेड कि नहीं यार ये हाइपर लोकल जो पूरा स्पेस है इसको आपको डेवलप करना है. सो Yes, thank you so much. And yeah, you're doing a good job. So, of course, bringing the audience the reality of people and everything. So, yeah, that's a great thing. Yeah. थैंक यू सो मच. Thank you.